Our commentators are Athar Saeed in Hindi and Kaushik Roy in English. ये आकाशवाणी है। अब हम आपको करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अथर सईद हिंदी में और कौशिक राय अंग्रेजी में। आइए करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट नई दिल्ली चलते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अतहर सईद अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आकाशवाणी की ओर से करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री एनसीसी रैली 2024 में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई, जिसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। और इस बार प्रधानमंत्री एनसीसी रैली की थीम है अमृतकाल की एनसीसी। और हम यहाँ पर अपने सुनने वालों को बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महोदय अपने छात्र जीवन में एनसीसी के अनुशासित कैडेट रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य नजर आ रहा है यहाँ करियप्पा परेड ग्राउंड पर। आज प्रकृति भी मेहरबान है। लंबे समय के बाद इस समय आज सुनहरी धूप धरा पर उतरी हुई है और हवा से इस समय करियप्पा परेड ग्राउंड पर ध्वज शान से लहरा रहे हैं। सजे धजे चुस्त दुरुस्त कैडेट्स शौर्य, साहस, एकता और अनुशासन भरा वातावरण, बेहद सुंदर, मर्यादित और गरिमापूर्ण माहौल यहाँ पर इस समय नजर आ रहा है। एनसीसी का लक्ष्य युवा भारतीयों में चरित्र, अनुशासन, भाईचारा, साहस की भावना, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के आदर्श को विकसित करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य उन युवाओं में नेतृत्व के गुणों को जगाना है जो तन मन से राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। एनसीसी युवाओं को सशस्त्र बलों में अपना भविष्य बनाने के लिए एक प्रेरक का काम करता है और साहस भरता है, जोश भरता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना विकसित करता है। Namaskar, good evening and welcome to this very special broadcast from the Field Marshal Kodandera Madappa Kariappa Parade Ground at Delhi Cantonment. The Prime Minister's National Cadet Corps Rally, PM's NCC rally, is held every year, generally on the 28th of January at this very Kariappa Parade Ground. The event has its genesis in the Pagal Gymkhana and Sports events organized in 1951. Having undergone many positive improvements and additions over the year, the event got its present form in 1954. The Prime Minister has always graciously presided over the event since its inception, and therefore it has come to be known as the Prime Minister's Rally. And as my colleague Athar just mentioned, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi himself, was an NCC cadet in his formative years. This year, the PM's NCC Rally has been held today, that is the 27th of January 2024. The Prime Minister's NCC rally is organized by the Directorate General of the National Cadet Corps and marks the culmination of the major training activities for the year, most predominantly the Republic Day camp. Yesterday, on the Republic Day of India, a strength of 308 girl cadets participated in the RD parade at Kartavya Path ground. And as we await the Sirens, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Lieutenant General Gurbir Pal Singh, Director General National Cadet Corps, parade ground, and he will be received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, and the Director General of NCC, Lieutenant General Gurpal Singh. And we can hear the cadets there and see the Prime Minister's vehicle coming slowly towards the saluting dais. The Honorable Defence Minister, Raksha Mantri, and the DG NCC are awaiting the arrival of the Prime Minister as his vehicle comes to a stop just in front of the dais, and the Prime Minister's entourage officials will be opening the door, and the door has been opened. The Honorable Prime Minister is alighting from the vehicle and is also wearing an NCC cap.
the Honorable Prime Minister receiving a huge round of applause from all those who are present here, and the Honorable Prime Minister is climbing up the stairs towards the saluting days. बिल्कुल करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय यहाँ पर स्वागत हो रहा है। मंच पर पधारते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करियप्पा परेड ग्राउंड पर उनका अभी आगमन हुआ है। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं। उनका इस समय अभिवादन किया जा रहा है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। बेहद गरिमापूर्ण इस समय वातावरण। परेड कमांडर के आदेश पर 17 राज्य निदेशालयों की टुकड़ियों और गार्ड ऑफ ऑनर ने निदेशालय प्रस्तुत की। जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे very shortly the Honorable Prime Minister will proceed to review the parade. माननीय प्रधानमंत्री महोदय को रिपोर्ट देने के लिए will arrive shortly as we see Cadet Captain Ulfat Khan of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate coming ahead to request the Prime Minister to review the parade. राष्ट्रीय सलामी के बाद अब एनसीसी निदेशालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के परेड कमांडर इस समय सीनियर अंडर ऑफिसर रिसेवा लालू को परेड की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने के लिए हम देख पा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। And the cadet has requested the Honorable Prime Minister to review the parade, and the Honorable Prime Minister, being escorted by the Director General of the National Cadet Corps, will now get into the special vehicle and review the parade. And as Athar said, it's a beautiful day today, sunny yet windy, and we have thousands of people here at the Kariappa parade ground. The Honorable Prime Minister is aboard the special vehicle and is flanked by the Director General of National Cadet Corps and the Cadet Ulfat Khan. And the Prime Minister is now proceeding to review the parade. माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय अब परेड की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय परेड की समीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वाहन पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ डीजीएसएमसी और परेड कमांडर मौजूद। और परेड कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर उल्फत खान इस समय मौजूद। वाहन पर परेड में 17 राज्य निदेशालयों की टुकड़ियां शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में 32 कैडेट हैं जो अंतर निदेशालय प्रतियोगिताओं 2023-24 में उनकी योग्यता के आधार में राजसी करियप्पा परेड ग्राउंड के दूर के छोर पर पंक्तिबद्ध हैं। और गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग और गर्ल्स विंग की टुकड़ियां इस समय शामिल हैं। गरिमापूर्ण यहाँ पर वातावरण, तिरंगे लहराते हुए तमाम हाथों में इस समय यहाँ पर परेड देखने आए हुए तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की भी यहाँ पर शामिल है। हम आपको ये बता दें कि कठिन योग्यता परीक्षणों और कठिन प्रशिक्षण के बाद आज की परेड में भाग लेने के लिए चुने गए इन चुस्त चपल कैडेटों के लिए ये वास्तव में बेहद गर्व और सम्मान की बात है। जी बिल्कुल अथर, and we can see that the Honorable Prime Minister's vehicle is at a very slow trot, if I may use the term. And both to our north and south flanks, we can see all the stands are full of people, especially young children, and they are all waving the national tricolour. And the Honorable Prime Minister is accepting the namaskars from the people, and what a sight it is indeed, a lovely day. And the Honorable Prime Minister's open jeep is slowly moving towards the base of the parade, from where he will review each of the 17 contingents. And as Athar mentioned, that
The NCC has 17 directorates across the length and breadth of the country, and every contingent here has one leader and 32 cadets, and it's a beautiful sight indeed at the Karyappa Parade Ground. We can see that the Honorable Prime Minister's open jeep is moving slowly towards north of us, and he's also waving to the thousands of people who are present here. And this has been a customary event that has been held every year since the inception of the National Cadet Corps. And this is the 76th year indeed. And the Prime Minister is receiving a lot of applause from the people who are present here. And he's also doing namaskar to the youth and children who are present here. इस समय समीक्षा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बेहद गरिमापूर्ण वातावरण यहाँ पर करियप्पा परेड ग्राउंड पर नजर आ रहा है। तमाम उत्सुक निगाहें इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर उठी हुई हैं और ये बेहद गरिमापूर्ण ये समारोह इस समय एनसीसी की जो महोत्सव कहा जाए तो उचित होगा। क्या शानदार यहाँ पर इस समय दृश्य उपस्थित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सजी धजी जो वाहन है उसमें सवार होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय समीक्षा करते हुए बेहद सुंदर नजारा यहाँ पर करियप्पा परेड ग्राउंड पर इस समय उभरता हुआ। The band for today's parade is the combined NCC band from the EME Center, Birla Valika Vidyapeeth Pilani, Sindhya School Gwalior and Sainik School Kapurthala and Sainik School Gorakhal. And it is led by Subedar Rajendra Singh of Rajasthan Rifles and playing the tune Samman Garad. The state directorate contingents that are lined up from left to right in order of the overall standing is the inter-directorate competition. And now the Honorable Prime Minister has inspected the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh, followed by Jammu Kashmir and Ladakh and Uttar Pradesh. राज्य निदेशालय की टुकड़ियों को अंतर निदेशालय प्रतियोगिताओं 2023-24 में उनकी समग्र स्थिति के क्रम में बाएं से दाएं पंक्तिबद्ध किया गया हम देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समीक्षा की जा रही पहली टुकड़ी महाराष्ट्र निदेशालय की टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर यतिन राणा कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न जो टुकड़ियां हैं वो इस समय हमारी नजरों के सामने नजर आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय इस समय करियप्पा परेड ग्राउंड के एकदम मध्य पहुंचते हुए तमाम टुकड़ियों का इस समय समीक्षा की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा जो कि अपने छात्र जीवन में Prime Minister has just passed the naval contingent, and then we have the guard of honor from the army wing to the Honorable Prime Minister. And what a sight indeed it is, Athar. The Honorable Prime Minister, who himself has been a cadet, it must be indeed a proud and very satisfying moment for the Honorable Prime Minister to be reviewing this parade. ठीक है कौशिक, आपने ये साहस, ये सहिष्णुता, ये देशभक्ति, ये आपदा में कर्तव्य, ये मुश्किल समय में नेतृत्व, ये सेना की राह पर, ये सेवा की राह पर, ये आजाद भारत का बल, ये वायु, जल और थल, ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर जो इस समय अपनी पूरी छठा बिखेर रहा है करियप्पा परेड ग्राउंड पर। Just past the Uttarakhand contingent, and after that the Gujarat contingent, which was led by Cadet Ankit, and now the Prime Minister is inspecting the Bihar and Jharkhand contingent directorate, and now is the time for Andhra Pradesh and Telangana. कौशिक, एनसीसी का जन्म की अगर बात करें तो इसका जन्म हुआ 15 जुलाई 1948 को। ये एकता, ये अनुशासन, ये एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर 1949 में देश की पहली बालिका विंग बनी जो दुनिया ऐसा पहला अपना उदाहरण उन्होंने पेश किया और देश की बेटियां यहां भी सफलता की चोटियां इस समय छू रही हैं।
1950 में एनसीसी के एयर विंग और 1952 में एनसीसी के नेवल विंग ने आकार लिया और आज भारत की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी खड़ी है दुनिया के सबसे बड़े युवा अनुशासित संगठन के रूप में। Absolutely, Athar. And having reviewed the parade, the Honorable Prime Minister is now returning towards the saluting days. The cadets and proud parents headed right to our booth, wave jointly, jubilantly to the Honorable Prime Minister, and the Prime Minister is also waving back to them. The northern and southern seating stands are new additions to the Karyappa Parade Ground, and the capacity has been enhanced by 3,000 wide more seats, and the Honorable Prime Minister has mentioned that Karma Yogis are the real force behind the development of the society, and to attend this spectacular Prime Minister's NCC rally over the past 76 years, driven by the passion of the illustrious alumni of the National Cadet Corps, it has grown from strength to strength. And the third, it is indeed great to know that some of the cadets were Netaji Subhash Chandra Bose, Cadet Sergeant Pratap Singh, the recipient of the Ashok Chakra for his gallant action during the Indo-Pak War of 1965, Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh, General T.N. Raina, Padma Bhushan, MVC, former Chief of Army Staff, Olympic silver medalist Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, Arjuna awardee winner athlete Hima Das, Member of Parliament and actress Srimati Jaya Bachchan, industrialist Shri Adi Godrej, noted cardiologist Dr. Naresh Trehan, late parliamentarian Srimati Sushma Swaraj, and of course we did mention one of the most shining alumni of the National Cadet Corps, that is the Honorable Prime Minister himself. And today, at the 76th Prime Minister's NCC rally, there are 200 special NCC alumni who have been invited to this function. And as we can see now, Athar, that almost the stands that are before us, everyone has stood up, and we too have stood up to get a bird's eye view of the Honorable Prime Minister's vehicle as it is meandering to stop towards the special days, and there is the Honorable Prime Minister who is waving, and the crowds here are also enthusiastically waving back at the Prime Minister, who's wearing the special NCC cap. It's a windy day, and the Honorable Prime Minister's vehicle is going to come to stop just in front of the saluting days. कौशिक, क्या ही मनोरम दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय तमाम उठे हुए हाथों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय हमारी नजरों के सामने से गुजरकर मंच की ओर अग्रसर होते हुए, पथ क्या पथ कुशलता क्या यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी आज के भव्य समारोह का गवाह बनने के लिए हमारे बीच 200 एनसीसी एलुमनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी महोदय मंच के समीप गाड़ी से उतरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिव्य सज्जनों, दर्शक दीर्घा में स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच से गुजरते हुए देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। And now the parade commander will once again seek the Honorable Prime Minister's permission to march back to disperse the State Directorate contingents and the Guard of Honor, as also the commencement of the march past by the marching contingents. The parade commander is now marching back to disperse the state-directed contingents, the Guard of Honor, as also the commencement of the march past by the marching contingents. The band will shortly play the tune Sare Jahan Se Acha. India, a nation of over 1 billion people, and a nation for 1 billion reasons. And in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer. Yes. It is indeed, and the band will now play Kadam Kadam Badhaye Ja, the immortal lyrics of the Azad Hind Fauj or the Indian National Army. And there we see the parade commander once again.
And it is indeed a sight as the 17 direct trains, one to north and the other two south, have turned exactly to the distances that was commanded by the... There is discipline in an NCC cadet. You can see it when he walks. Sight which is very, very soothing to the eyes. There is honor in an NCC cadet. You can see it when he talks. This is what we call... There is courage in an NCC cadet. You can see it in his eyes. A proud moment. There is loyalty in an NCC cadet that he will never ever compromise. There is something in an NCC cadet that makes him stand apart. In history's distinguished stages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the National Cadet Corps, we are the force, we are the strength, we change history's course. Cadet Corps and full Ladies and marks gentlemen, may I to request Cadet you all for a Captain generous round of applause for the marching out contingent. Jammu Kashmir From and the direction of the southern stands, you can now see shortly the horse-mounted contingents leading the marching contingents. There are a total of 6 NCC marching contingents representing the senior wing girl cadet contingent, the North Zone, East Zone, Central Zone, West Zone and the southern zones of the country. मार्च आउट कर रही रुके है ना हम और साथ में आप सुन पा रहे हैं कदम कदम बैंड पर बढ़ाएंगे धुन एकता का गीत सारे देश को सुनाएंगे हिंदुस्तान हमारा लगा के देश प्रेम के पंख दूर तक उड़ेंगे हम बढ़ेंगे हम फलांगते नदी पहाड़ रास्ते वतन के रखवाले हम जिए इसी के वास्ते वतन के रखवाले हम जिए इसी के वास्ते हम एनसीसी के हैं योद्धा स्वप्न हमने बुन रखा है राष्ट्र के निर्माण का युवा शक्ति है हम संकल्प यही दोहराते हैं एकता और अनुशासन से हम आगे ही बढ़ते जाते हैं और इसी के साथ देवी और सज्जनों आपके सामने सलामी मंच की ओर गर्व से बढ़ते हुए एनसीसी के 5 घुड़सवार एनसीसी में घुड़सवारी प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय के प्रेरणा स्वामी के हाथों में इस समय अपने घोड़े रोमन फ्लैम पर सवार हैं। इस समय ये ध्वज वाहक थल सेना का ध्वज कैडेट मनप्रीत के हाथों में Yes, indeed. Now the flags of the various contingents of the NCC as also the national tricolor and the colors of the Army, Navy, Air Force and the NCC are going on their steeds and saluting the Honorable Prime Minister, and these are from the different zones of the country, north, south, east and west, and they are carrying the national tricolor, the colors of the Army, Navy, Air Force and the colors of the NCC. बिल्कुल कौशिक, राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय के प्रेरणा स्वामी के हाथों में इस समय जो अपने घोड़े रोमन फ्लैम पर सवार हैं, आर्मी फ्लैग हाथ में लिए शान से रॉयल प्राइड की सवारी कर रही है मनप्रीत। उनके बगल में आप देख पा रहे हैं इस समय टाइटन पर सवार सुहाना को, जिन्होंने अपने हाथों में नौसेना का ध्वज थामा हुआ है। वायुसेना का ध्वज थामे हुए हैं शेख रेहाना अपने घोड़े गगन पर इस समय हम देख पा रहे हैं। और साथ में अब हम देख पा रहे हैं कि एनसीसी का ध्वज है सलोनी के हाथों में, जो अल फतेह घोड़े के ऊपर शान से दिख रही है। Yes, sir, and that was the all girls contingent of the NCC that is leading the marching contingent, and it is being followed by the North Zone contingent, and प्लेकार्ड थामा है उत्तराखंड के कैडेट आयुष डबराल और इसके पीछे मंच की और गौरवशाली कदमों से आगे बढ़ता अगला दस्ता पूर्वी क्षेत्र का पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के अलावा ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम निदेशालय इसमें शामिल। नेतृत्व ओडिशा निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राहुल बसक, प्लेकार्ड बेरर पूर्वोत्तर निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर निगाम्बा सिंह। प्रदेश के 32 कैडेट्स और कंटिजेंट कमांडो द्वारा आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री को दी गई शानदार सलामी यहां उपस्थित जनों ने देखी और आत्मविश्वास भरे लंबे और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैडेट्स इस समय हमें नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र और उसके बाद दक्षिण क्षेत्र की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर साईनाथ लवानी, कर्नाटक और गोवा निदेशालय। प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर सृजन श्रीधर, केरला और लक्षद्वीप निदेशालय, कर्नाटक और गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का संयुक्त दस्ता। और कौशिक और पश्चिम क्षेत्र का कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर जयपाल सिंह राजपुरोहित। इसमें 2023 की निदेशालय ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट्स शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर अविनाश भोसले के हाथों में बोर्ड मार्कर दिख रहा है।
और पश्चिम क्षेत्र के बाद अब सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रहा है दक्षिण क्षेत्र का यानी साउथ जोन के कैडेट्स का संयुक्त दस्ता, जिसमें शामिल हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप निदेशालय के कैडेट्स। साउथ जोन के इस दस्ते का नेतृत्व साईनाथ लवानी कर रहे हैं। सृजन श्रीधर अपने हाथों में दक्षिण क्षेत्र का बोर्ड थामे हुए शान से, गर्व से आगे बढ़ रहे हैं। And after the different zonal cadets, we have now the visiting cadets from overseas. The first contingent is from Argentina and Bhutan, and we have 24 countries this time, comprising of 229 cadets. After Argentina and Bhutan, from Kazakhstan and Kenya with 3 and 10 cadets respectively. Fiji. And it's also a lovely sight, all these youngsters from various parts of the world coming to see Bharat, and the Honorable Prime Minister is saluting the 5th pair from Laos visitors. and Maldives with 10 cadets and 4 cadets Next respectively. we see is Thereafter, Fiji the contingent from Malaysia and Mauritius with 4 and 10 cadets respectively. who are just passing by the saluting days. बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया और रशिया के भी यहाँ पर हमें एनसीसी कैडेट्स नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया और साथ में सेशल्स, सिंगापुर और ताजिकिस्तान के दल भी यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। The cadets from Laos and Maldives cross the saluting bays, followed by cadets from Malaysia and Mauritius. और इस समय सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रहे हैं यूके का एक दल, और उसके ठीक पीछे पीछे आ रहा है वेनेजुएला का ये दल, शान से, गर्व से, अनुशासित मुद्रा में आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष से गुजरता हुआ, सलामी मंच से गुजरता हुआ इस समय ये दस्ता। और अंत में मुझे नजर आ रहा है वेनेजुएला और वियतनाम के दल, Russia, and you're right, it's Venezuela, and just marching in front of us, and they are wearing their national colors. This is a wonderful sight. And the Sri Lanka with youngsters 10 from Russia, and 12 cadets respectively. and this time the contingent from Seychelles, the jewel in the Indian Ocean, is just and then we have the contingents from Kazakhstan and United Kingdom with 5 and 10 cadets. It is also accompanied by the contingent from Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia, with which India has very strong and strategic ties. और इसके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं सिंगापुर का दल, linking the world as one family, Vasudev Kutumbakam. आगे बढ़ रहा है, hearts beat together in one resolve, in one vision, one goal, one hope. The world be one, united in strength, united in happiness. We are the world. The NCC has the privilege of hosting foreign cadets. And we now see the contingent from our immediate neighborhood, a country with which we enjoy very close relations, that is Vietnam, and which is part of India's Act East policy. And now the marching contingent too comes right towards the saluting dais and takes a right turn as they play Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. And it is indeed a befitting tribute to our great country today. North, east, west, south, everyone represented here from different caste communities, races and religions. Oh, what a sight indeed. These brave youngsters of India and the guests who have come from 25 countries. Indeed, it's a moment to cherish, a moment to nurture. What a display by the young men and women of the National Cadet Corps. This is indeed truly mellifluous. Very music to transport you to sheer bliss and that happiness. We just witnessed. Athar. कौशिक, हमने ये मार्चिंग दस्तों का मार्च पास्ट यहाँ पर देखा, क्या ही अनुशासन यहाँ पर देखने को मिला, और बैंड इस समय भी बजा रहा है धुन सारे जहां से अच्छा। श्रोता, हमने मार्च पास्ट के माध्यम से मन और शरीर की सटीकता का एक शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखा। करियप्पा परेड ग्राउंड पर समकालिक मार्च करने वाली टुकड़ियां, फौलादी धैर्य, महिला शक्ति का अभेद्य सफर और एनसीसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरित अनुशासन की याद मुख्यालय डीजी एनसीसी रही हैं। एडवेंचर, विकसित भारत संकल्प, नारी शक्ति, मेरी माटी मेरा देश के पहलुओं को मिलाकर एक अनूठी पहल की है। महिला शक्ति का अभेद्य सफर नामक 2 मेगा साइक्लोथॉन के
अद्भुत नजारा यहाँ पर अब थोड़ी देर में आप देख सकेंगे परेड ग्राउंड के बाएं और दाहिने दोनों साइकिलिंग टीमों को। एक टीम 8 दिसंबर 2023 को दक्षिण कन्याकुमारी से डीजी एनसीसी द्वारा 13 गर्ल कैडेटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए की गई। कन्याकुमारी से गुजरात निदेशालय की 11 गर्ल कैडेटों के साइकिलिंग टीम ने नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए 3606 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। ब्रिगेडियर एनएस चारग, सेना मेडल ग्रुप कमांडर एनसीसी बड़ौदा के नेतृत्व में इस साइकिलिंग टीम ने दक्षिण और पश्चिम राज्यों के से गुजरते हुए प्रतिदिन 97 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 33 दिनों में दिल्ली पहुंचे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और वहीं उत्तर पूर्व गुवाहाटी से वाराणसी के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निदेशालय की 14 गर्ल कैडेटों के साथ दूसरी टीम ने पूर्वी और मध्य राज्यों से प्रतिदिन औसतन 105 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 2307 किलोमीटर की कठिन यात्रा 22 दिनों में पूरा किया और जागरूकता अभियान चलाया और विभिन्न राज्यों से देश की पावन मिट्टी एकत्रित की। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं किस प्रकार महिला शक्ति का अभेद्य सफर की साइकिलिंग टीमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मिशन समाप्ति के फाइनल दौर में फ्लैग इन के लिए प्रवेश कर रही है। देश के कोने कोने से पवित्र माटी ला रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी जाएगी। और उसी पल परेड ग्राउंड के सामने दाहिनी तरफ गुंबद के पास एक खूबसूरत कलश और एनसीसी लोगो की शानदार प्रतिकृति प्रकाशमय हो जाएगी। और इस मिट्टी से एनसीसी लोगों की एक भव्य संरचना बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में एनसीसी कैंप में लगाया जाएगा। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित उजागर करने के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। Yes, and we can see there's a huge round of applause माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने आ रहे हैं और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे देश के कोने कोने से लाई पवित्र माटी को सप्रेम स्वीकार कर ग्रहण करने की कृपा करें। India's Mati to the Honorable Prime Minister. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से और इसी समय आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रकाशमय होता जा रहा है वह कलश जो सामने दाहिनी ओर गुंबद के साथ है और उसी के साथ एनसीसी लोगो कलश से बाहर निकल रहा है। एक अद्भुत दृश्य। देवी और सज्जनों, आप सोचते होंगे कि ये कैडेट थके क्यों नहीं। आंखें जब इनकी नींद के लिए बोझिल हो रही थी, पलकों पे उतर जाता था माननीय प्रधानमंत्री अपने चहेते, अपने प्रिय, देश के सबसे लोकप्रिय, अब तो यूं कहें कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, यही तो मुस्कान थी जो इन नन्हे पैरों को तेज तेज साइकिल चलाने के लिए यही तो चेहरे का तेज था जो इन कैडेटों की आंखों में सूर्य बनकर पूरे रास्ते हर नागरिक की आंखों में चमक रहा था। इन कैडेटों के हृदय की धड़कनें आप सुन सकते हैं। इनके चेहरे की मुस्कान इनके दिलों के राज खोल रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने प्रेरणा सूत्र दिए हमारे इन युवा साइकिल चालकों को। क्या खूबसूरत अद्भुत नजारा यहाँ पर है। Indeed, we can say that this is one of the Vandans of Nari Shakti, and as the young cyclists pass through the different stands, they receive a huge round of applause. And third, we can see that again when they are exiting from the saluting days, all the cadets are going one after the other in a single file. That's wonderful to see. And now we see that this after the cyclothon, it's Nari Shakti Vandan Run, 460 kilometers long Nari Shakti Vandan Run was flagged off on the 17th of January from the epic Jhansi Fort, the iconic symbol of women's empowerment, to highlight the emergence of Nari Shakti in the country. कौशिक 460 किलोमीटर की दौड़ के अंतिम चरण के लिए आत्मविश्वास से भरे कदमों से दौड़ते हुए मेजर शशि मेहता अब करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। Athar, that she is coming with the sword
thus signifying the importance of Jhansi, and Major Shashi Mehta is running towards the dais. बिल्कुल झांसी से अपनी दौड़ शुरू करने के बाद मेजर शशि मेहता ने नई दिल्ली पहुंचने के लिए मुरैना यानी मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश का सफर तय करते हुए इस समय मंच पर पहुंचते हुए सधे हुए कदमों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के सामने इस समय मौजूद मेजर शशि मेहता और ये तलवार सौंपते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को। क्या अद्भुत नजारा है यहाँ पर। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने तलवार इस समय यहाँ पर सामने प्रदर्शित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की इस समय प्रतिमा उभरते हुए स्क्रीन पर और उसकी लाइट यहाँ पर अद्भुत रोशनी से सराबोर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा करियप्पा परेड ग्राउंड पर अद्भुत नजारा इस समय उभरता हुआ। Yes, indeed. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, and that was a wonderful effort by Major Shashi Mehta, who is in fact ranked number 1 in the 24-hour ultra run category, a whole-time lady officer of the National Cadet Corps, and she is currently posted in 11 Uttarakhand NCC battalion. She took the Nari Shakti Vandan run, averaging 80 kilometers a day to complete the 460 kilometers in 6 runs. And now a short film on Amrit Kal ki NCC. National Cadet Corps. थल जल नभ सेना से प्रेरित, रक्षा मंत्रालय से है संचित, युवा शक्ति जो है अनुशासित, दल ऐसा जो करे अचंभे। 17 लाख से ऊपर युग जवान प्रशिक्षित होते हैं पल्लवित। इन सब की चरित्र निर्माण से होते देश की जनगण गर्वित। देशभक्ति और अनुशासन ही भरा है जिनकी पोर हो, उन्हीं युवाओं की मेहनत से बनता नेशनल कैडेट कोर। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, विकसित बनाएगी। अनुशासन के संग एकता और देश निर्माण लक्ष्य है। सहयोग, समन्वय और सेवा में एक कैडेट लक्ष्य है। एक भारत के यज्ञ भाव से श्रेष्ठ भारत बनेगा भव्य है। अच्छा नागरिक बनने संघ में समर प्रशिक्षण जीव द्रव्य है। थल सेना शिक्षा से शुरू हुआ था अपना नेशनल कैडेट कोर। सैकड़ों की संख्या है उनकी जो करते सागर से प्यार। एनसीसी के युग नौसैनिक कल बनेंगे देवी के श्रृंगार। हजारों आकाश में उड़ना चाहें जैसे पतंग संग दो, योग भी इनके आगे छोटा, देखें ये आकाश से हो। गणतंत्र दिवस में बढ़ते रंग, यहाँ युवा लगाकर पूरा जोर, भारत के सारे रंगों से बनता नेशनल कैडेट कोर। पर्वत में बर्फीले या हो गरम उभरते हुए विस्तार, जंगल में पहाड़ या सागर, कोई दूर नहीं था। 21,000 स्कूल कॉलेज में रखा जाता इनका ध्यान। कोर के अनुभवी ट्रेनर इनको खुद देते हैं सारा ज्ञान। नहीं समझना उम्र में है कोमल पर है कठोर, ऐसे बालक बालिकाओं से है अपना नेशनल कैडेट कोर। कभी करने पुनित सागर, करते हैं प्लास्टिक परवार, कभी जगत के बन के मित्र, बनते पर्या के आधार। ज्वार बाजरा कोदो मक्का रागी जौ हो मोटे आहार, जन जन बीच में जाकर कैडेट्स करते मिलेट्स का प्रचार। कैडेट्स रहते हैं सबसे आगे, देश का कोई हो अभियान या हो नूतन योजनाएं, राष्ट्र के हुए नव अभिदान।
नशा मुक्ति की बात सिखानी या देना हो स्वास्थ्य का ज्ञान, हो प्राण बचाने रक्तदान, आपदाओं में बचानी हो जान, हो कौशल्य विकास का अभियान या योग का देना हो प्रज्ञान। राष्ट्र बदलने जो निकले हैं, जो देख रहे हैं नवीन छोर, ऐसे ही नवयुवक बने हैं अपने राष्ट्रीय कैडेट को। अमृत महोत्सव आजादी का जब से देश मनाने निकला, मेरी माटी मेरा देश मंत्र बन गया राष्ट्र का अगला। भूल गुलामी के चिन्हों को मिटा के सारा किस्सा पिछला, पंच प्रणों के महाजाप से फिर से अपना भारत बदला। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम ही इनका उद्यम, ये ही इनका अंतिम ठोर। भव्य भारत की अमृत पीढ़ी है अपना नेशनल कैडेट कोर। खेल खेल में कैडेट्स अपने करते रहते अद्भुत काम, सारे ही खेलों में कैडेट्स करते सबका काम तमाम। एनसीसी होती मेजबान, वसुधैव कुटुंबकम है पीएम का आह्वान। प्रधानमंत्री ने फूंकी है नवयुवकों में नई जान। जो कैडेट बने कभी जीवन में, सदा रहे मुल्क पर कुर्बान। युवक अगर वज्र से सशक्त हैं, तो कन्याएं हैं चट्टान। हम सब भारतीय हैं और एक है हम, और एक है हम। ये नारा हमको करे विभोर, नव राष्ट्र बनाने जुटा हुआ है अपना नेशनल कैडेट कोर। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और अब समय है सांस्कृतिक प्रस्तुति। और अब श्रोताओं, समय है दिल्ली निदेशालय के कैडेटों द्वारा प्रस्तुत असाधारण प्रदर्शन का, जिसमें 880 कैडेटों द्वारा अमृतकाल के एनसीसी थीम पर आधारित एक सामूहिक सांस्कृतिक उत्सव हम देखने वाले हैं। हमारे देश के समृद्ध नृत्य रूपों के रचनात्मक समावेशन के माध्यम से कैडेट विविधता में एकता, राष्ट्रवाद, युवा शक्ति, भारतीय ध्वज के प्रति सम्मान और एनसीसी को अमृतकाल की भविष्यवादी दृष्टि के स्रोत के रूप में उजागर करेंगे। यहाँ करियप्पा परेड ग्राउंड में अमृतकाल की एनसीसी हम इस गीत पर विभिन्न नृत्यों के माध्यम से कैडेट भविष्य में भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण पर आधारित प्रस्तुति देंगे। ये सभी कैडेट दिल्ली के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों से हैं और इस आयोजन की तैयारी के लिए पिछले 40 दिनों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोरियोग्राफी की है पंडित मनीष पांडे और सुश्री गीतांजलि ने। कुछ क्षणों के बाद ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर करियप्पा परेड ग्राउंड पर शुरू होने जा रहा है। अमृतकाल की एनसीसी, इसके अंतर्गत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अब प्रारंभ हुआ चाहता है। करियप्पा परेड ग्राउंड इस समय तैयार, तमाम दर्शक उत्सुकता से अपनी नजरें सामने की ओर रखे हुए।
मंजिलों पर पहुंचे हैं, अरे हम है वही, सितारों से भी आगे, अरे हम है वही, जो मंजिलों पर पहुंचे हैं, अरे हम है वही, सितारों से भी आगे, अरे हम है वही। हम ही में ऐसी बात है जो सब में नहीं, वीर है भारत माँ के, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं। हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। अपने ख्वाब सुनहरे हैं, ये अमृत काल सुनहरा होगा, अमृत काल सुनहरा होगा। अपने ख्वाब सुनहरे हैं, ये अमृत काल सुनहरा होगा। करने हैं साकार हमें इस देश के सपने हैं, करने हैं साकार हमें इस देश के सपने हैं। सारी दुनिया मान रही अब भारत की बारी है, सारी दुनिया मान रही अब भारत की बारी है। नारी शक्ति गति शक्ति है हम, नई राह और मंजिल भी है हम। विश्व गुरु दुनिया के हम, श्रेष्ठ भारत का सूत्र है हम। विश्व गुरु दुनिया के हम, श्रेष्ठ भारत का सूत्र है हम। प्रगति की ऊंची उड़ान है हम, देश की पहचान है हम। भारत के युवा है हम, भारत के युवा है हम, भारत के। हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमेशा चलेंगे। सौराष्ट्र से अरुणाचल तक, दक्षिण से हिमालय तक, भारत का नया स्वरूप होगा। नए भारत की गहरी नींव है हम, देश हित हमें सबसे प्यारा, रक्षा को तैयार खड़े हैं हम, देश हित हमें सबसे प्यारा। चले हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। चलते सभी एक चाल से हम, बढ़ते कदम एक ताल पे हम, युवा जोश दौड़ा रगों में, हिम्मत ताकत विश्वास है हम। देश भरोसा करता जिस वर्दी पे वो अंगार है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे, नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। अमृत काल की नई रफ्तार है हम, अमृत काल की नई रफ्तार है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम।
लक्ष्मीबाई सा साहस हमें, नेताजी सा देश प्रेम है। लक्ष्मीबाई सा साहस हमें, नेताजी सा देश प्रेम है। कल्पना की उड़ान है अपनी, मिल्खा सी रफ्तार है हमें। कलाम का ज्ञान है हम, पटेल का औलाद है हम। जल थल नभ गगन है हम, भारत का चेहरा है हम। एकता की मिसाल है, अनुशासन में कमाल है। देश सेवा को तैयार है। हम ही में ऐसी बात है जो सब में नहीं। वीर है भारत माँ के, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं। हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। हम एनसीसी, एनसीसी है 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 हम। And what a marvelous, scintillating display of the best of Indian dance and music here by 880 cadets of the National Cadet Corps, who performed a special song that was choreographed by Ms. Geetanjali, and the song was titled Amrit Kal Ki NCC, NCC hai hum. And this has drawn huge round of applause from everyone who is present here. And now the Honorable Prime Minister समय आ गया है इन लोगों को सम्मानित करने का। awards in various categories to the winners of the years 2023-24, and my colleague Athar Said with the details. कौशिक, जैसे ही सूर्य अपनी यात्रा संपन्न कर रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर करियप्पा परेड ग्राउंड में जोश अपने चरम को पहुँचता हुआ, और अब उन लोगों को सम्मानित करने का समय आ गया है जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में कड़ी मेहनत की और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और ये तमाम युवा माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के कर कमलों से पुरस्कृत होने जा रहे हैं। सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए ये पुरस्कृत एनसीसी कैडेट, ये तमाम कैडेट अब सम्मानित होने की प्रतीक्षा में, ये बड़े गौरव के क्षण जब माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के कर कमलों से उनको पुरस्कार दिया जाएगा। The Honorable Prime Minister is now being escorted, and he has been accompanied by the Director General NCC, Lieutenant General Gurveer Pal Singh, Ati Vishist Seva Medal, UIC, and the Honorable Prime Minister will confer the various awards to 12 cadets and 1 Directorate General. The Honorable Prime Minister is being escorted by the Director General NCC, and the Prime Minister has reached the place where the awards will be. और अब सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कृत करने का समय आ गया है। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी कैडेट अंडर ऑफिसर अमृत मेल एल, जो कि तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश से इस समय प्रतिनिधित्व करते हुए।
उसके बाद बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी तिलक घोष पुरस्कृत किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल और सिक्किम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तिलक घोष इस समय पुरस्कृत किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के करकमलों द्वारा, और करतल ध्वनि से स्वागत किया जा रहा है, उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग नेवी कैडेट कैप्टन ईशा उधावत राजस्थान का नेतृत्व कर रही हैं, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से पुरस्कृत होती हुई। अद्भुत नजारा। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन नेवी कैडेट आदित्य पांडे केरला और गोवा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से पुरस्कार ग्रहण करते हुए। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग एयर कैडेट वारंट ऑफिसर खुशी जो कि महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस समय पुरस्कृत होते हुए। क्या ही खुशी के क्षण उनके लिए यहाँ पर, गौरव के क्षण। और उसके बाद बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर कैडेट वारंट ऑफिसर प्रज्वल केरला और गोवा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समय पुरस्कृत हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा। Yes, and the Honorable Prime Minister also presenting a memento and a baton to the cadets. Now, Sergeant M. Srisant of the Andhra Pradesh and Telangana Directorate has been awarded the Best Cadet Junior Division and Junior Army Wing by the Honorable Prime Minister. The Prime Minister hands over the baton to M. Srisant, and now the Cadet Nagandla Dhiraj from Andhra Pradesh and Telangana Directorate is getting the Best Cadet Junior Division Junior Wing Navy from the Honorable Prime Minister, and he presents the baton to the cadet. Next from Karnataka and Goa is Cadet Sergeant Ujjwal R. Gowda, who is the Best Cadet Junior Division and Junior Wing of Army. And for 2023-24, the runners-up directorate is Karnataka and Goa directorate, and it has been the Prime Minister is giving away the trophy to Junior Under Officer Tanmay Srinivas. The champion directorate trophy for 2023-24 goes to the Maharashtra Directorate, and it has been Sergeant Preetilata Sahu, Cadet Captain Shusti S. More, and the Additional Director General Major General Yogendra Singh Vishist Seva Medal. What a proud moment indeed. And now the champion directorate banner, Cadet Captain Shusti S. More of Maharashtra is collecting the directorate, champion directorate banner 2023-24 from the Honorable Prime Minister, and what a proud moment it is indeed. And now the Honorable Prime Minister will also be standing with the award winners for a photograph, and this will definitely be etched in the memory of all the proud award winners today. निसंदेह कौशिक ये स्मृतियों में बस जाने वाले दृश्य हैं, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पुरस्कार विजेताओं की छवि ली जा रही है। ये बहुत ही यादगार क्षण हैं जो इस समय उतरे हुए हैं करियप्पा परेड ग्राउंड में। एनसीसी कैडेट जवान चुस्त और अनुशासित ये एनसीसी कैडेट माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय अपने आसन की ओर अग्रसर। And the Honorable Prime Minister has been escorted to the saluting dais by the Director General National Cadet Corps, Lieutenant General Gurbirpal Singh, and the Prime Minister is arriving at the dais, and in a short while from now the Honorable Prime Minister will be addressing, and it is always a pleasure and a privilege to listen to the words of the Honorable Prime Minister and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
केंद्रीय मंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, अजय भट्ट जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, डीजी एनसीसी, सभी अतिथिगण और एनसीसी के मेरे युवा साथियों, एक पूर्व एनसीसी कैडेट होने के नाते मैं जब भी आपके बीच आता हूं, कितनी ही पुरानी यादें ताजा होते हैं। आप लोग तो देश के कोने कोने से यहां आए हैं और मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनसीसी रैली का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है और इस बार एक और नई शुरुआत यहां हुई है। आज यहां देश भर के सीमावर्ती गांव के, जिन्हें सरकार वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित कर रही है, उनके 400 से अधिक सरपंच हमारे बीच है। इसके अलावा देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधि के रूप में 100 से ज्यादा इसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 2014 में इस रैली में 10 देशों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। आज यहां 24 मित्र देशों के कैडेट्स मौजूद है। मैं आप सभी का और विशेषकर विदेशों से आए सभी यंग कैडेट्स का अभिनंदन करता हूं। मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। आज यहां अनेक कैडेट्स को पुरस्कार भी मिले हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली और गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करना, झांसी से दिल्ली तक नारी शक्ति वंदन रन, 6 दिन तक
470 किलोमीटर दौड़ना यानी हर दिन 80 किलोमीटर दौड़ लगाना यह आसान नहीं है। ये विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने वाले मैं सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं और जो साइकिल के दो ग्रुप है, एक बड़ौदा और एक काशी, मैं बड़ौदा से भी पहली बार सांसद बना था और काशी से भी सांसद बना था। मेरे नौजवान साथियों, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है। इसकी झांकी कल कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। ये जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा, यह अचानक नहीं हुआ है। ये बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और वेलु नाचियार जैसी वीरांगनाएं हुई है। आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को पस्त कर दिया था। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रख के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को पढ़ाई की इजाजत नहीं थी। आज देश भर में अनेक सैनिक स्कूलों में बेटियां पढ़ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में तो 10 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। राज्य पुलिस फोर्स में भी ज्यादा विमेन फोर्स के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथियों, जब ऐसे प्रोफेशन में बेटियां जाती हैं, तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में भी मदद मिलती है। युवा साथियों, समाज के दूसरे सेक्टर्स में भी बेटियों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। गांव-गांव में बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इससे जुड़ी सर्विस डिलीवरी में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां ही हैं। आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर। आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो अमृत काल है, यानी आने वाले 25 साल है, इसमें हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसका लाभार्थी मोदी नहीं है। उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। विकसित भारत और भारत के युवाओं के कैरियर की ट्रेजेक्टरी एक साथ ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए आप सभी को भी मेहनत करने में एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। बीते 10 वर्षों में स्किल हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इसके लिए हर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। युवाओं के टैलेंट और युवाओं के कौशल का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, इस पर बल दिया जा रहा है। नई सदी की नई चुनौतियों के लिए आपको तैयार करने के लिए ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। आज पीएम श्री स्कूल अभियान के तहत देश भर के हजारों स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। बीते दशक में कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन से के जुड़े संस्थान हो, उनमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। बीते 10 वर्षों में भारत की यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग में भी बहुत सुधार हुआ है। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मेडिकल सीटों में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अनेक राज्यों में नए आईआईटी और नए एम्स बनाए गए हैं। सरकार ने डिफेंस, स्पेस, मैपिंग जैसे सेक्टर्स को युवा टैलेंट के लिए खोल दिया गया है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नया कानून भी बनाया गया है। ये सारे काम मेरे नौजवान दोस्तों आपके लिए ही है, भारत के युवाओं के लिए ही हुए हैं। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे
कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करता हूं। ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए है। ये दोनों अभियान भारत के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की नई ताकत बनेगी, हमारी युवा शक्ति की नई पहचान बनेगी। भारत भी अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब्स कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है। दशक भर पहले जहां हम 2G, 3G के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, आज गांव-गांव तक 5G पहुंचने लगा है। गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने लगा है। साथियों, जब हम अपने ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से ही इंपोर्ट करते थे, तो वो इतने महंगे होते थे कि उस समय के अधिकतर युवा उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इससे आपका मोबाइल फोन सस्ता हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि फोन का महत्व बिना डेटा के कुछ नहीं है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है। साथियों, आज जो देश में ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, होम डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट हेल्थ केयर का कारोबार बढ़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। बीते 10 वर्षों में भारत में आई इस डिजिटल क्रांति का सबसे अधिक लाभ युवा क्रिएटिविटी को हुआ है। आप देखिए, आज भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का कितना विस्तार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए और निर्णय ले। सरकार वो होती है जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। एक समय था जब हमारे देश में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को
सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता था। पहले की सरकार कहती थी कि अगर बॉर्डर पर सड़कें बनाई तो दुश्मन को आसानी होगी। बॉर्डर के किनारे बसे गांवों को तब आखिरी गांव कहा जाता था। हमारी सरकार ने ये सोच बदल दी। जो पहले की सरकार की नजरों में आखिरी गांव थे, हमारी सरकार ने उन्हें प्रथम गांव माना। आज इन गांवों के विकास के लिए ही वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई जा रही है। इन गांवों के अनेकों सरपंच आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित है। आज वो आपको देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को देख रहे हैं, खुश है। कल को बॉर्डर किनारे के यही गांव टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी वाइब्रेंट विलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। मेरे युवा साथियों, विकसित भारत आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। इसलिए आज जब विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। ये 21वीं सदी के भारत के युवाओं का सबसे विराट संगठन बना है। सिर्फ 3 महीने में ही इसमें 1 करोड़ से ज्यादा युवा रजिस्टर कर चुके हैं। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय.गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई के लिए। आप उसके हकदार हैं। भविष्य के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत आभारी हैं। अब राष्ट्रीय कैडेट कोर का गीत हम सब भारतीय हैं और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सम्मानपूर्वक खड़े हो जाएं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की यहाँ यह कार्यक्रम and with the rendition of the national anthem and the Honorable Prime Minister just addressed the 76th National Cadet Corps Prime Minister's Rally at the Cariappa Parade Ground at Delhi Cantonment, and the Honorable Prime Minister is now departing from the saluting dais. He's been escorted by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, the Chief of Army Staff General Manoj Pandey, the Chief of Naval Staff Admiral R. Harikumar, the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, and the Honorable Prime Minister exchanging a few words with the Director General of NCC and other senior officials here. He is conveying his namaskar to the Raksha Mantri, and the Honorable Prime Minister will be getting seated in his vehicle. We can see that it is parked right in front of us at the end of the saluting days. And while the Prime Minister was addressing the cadets of the National Cadet Corps, he said that India's women are playing a key role in its developmental journey today, from Agniveer to fighter pilots. Sainik schools and permanent commissions have been opened for women, and they are now playing a command role and are in combat positions. And the Prime Minister said the new India is going to emerge in the next 25 years. He once again said during the Amrit Kal, Viksit Bharat will emerge, and the beneficiary of this will be our youngsters and our students. Today, India's global ranking has increased rapidly, and the government is focused on its priorities. There are new research and employment opportunities. India's digital economy has become the buzzword of the world. India today is the world's third startup hub, and India is now the second largest mobile phone manufacturer and exporter. Also, India has the cheapest data rate in the world. The Prime Minister once again said that his government is committed to make India a developed nation by 2047, and asked the NCC cadets here to join the My Yuva Bharat movement. And in the last 3 months, it has already has 1 crore plus registrations. The Honorable Prime Minister's motorcade will be leaving in just a few seconds from now, and the Honorable Prime Minister is waving to the crowds who are present here as he takes his seat in the Prime Ministerial vehicle. And the vehicles have started moving right in front of our eyes. And as the sun comes down today, we witnessed the remarkable prowess of India's youth, especially the youth who are a part of the 76 lakh strong National Cadet Corps, spanning over 17 directorates, and the cadets of NCC indeed presented a very scintillating presentation today at the Cariappa Parade Ground. Athar. कौशिक, एनसीसी कैडेट्स ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया
और खेलों के मैदान में भी लगातार अपना झंडा गाड़ रहे हैं एनसीसी कैडेट। और इनका उद्देश्य केवल सेना में भर्ती होना मात्र नहीं है, इनका लक्ष्य होता है देश की अखंडता, पहाड़ों से लेकर जंगलों तक, गली मोहल्लों से लेकर देश की सीमाओं तक, और एनसीसी से जुड़ने से लेकर अंतिम सांस तक, कश्मीर से लेकर अंडमान तक, मणिपुर से कच्छ के रण तक, हर दिशा के एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र के लिए एक भाव से आगे बढ़ते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हैं। एकता की इसी भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर, और इस प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं एनसीसी कैडेट्स। तो श्रोताओ, इसी के साथ प्रधानमंत्री एनसीसी रैली 2024 संपन्न होती है। मैं अतहर सईद अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और ओबी प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा और विशाल आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस ले चलते हैं। नमस्कार। अभी आप करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट नई दिल्ली से प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अतहर सईद हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। You are listening to the live broadcast of Prime Minister's NCC rally from Kariappa Parade Ground, Delhi Cant, New Delhi. Our commentators were Athar Saeed in Hindi and Kaushik Roy in English. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। अनुमति दीजिए कार्यक्रम के प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे दीपिका जसवाल को नमस्कार।